मैं स्क्रीन शेयर शुरू करके एंड वी स्टार्ट विद द टॉपिक. ओके. Okay. So this is our topic. हाँ जी. So this is your topic, structured query language. Moving to the next. What is structured query language? Structured query language is a set of instruction that is used to interact with a relational database. Now, what is relational database? Whatever, whenever we save the data in form of tables, we say it as a relational database. Okay. टेबल्स की फॉर्म में जब भी सेव करेंगे, फॉर एग्जांपल हम भी अभी भी सेव करें, माई सीक्वल यूज कर रहे हैं. सो व्हाट वी यूज टेबल टू स्टोर इंफॉर्मेशन. इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स है, कुछ टपल्स हैं. ठीक है. लास्ट टाइम हमने व्हाट इज एट्रीब्यूट क्या होगा, टपल क्या होगा, एक रिकॉर्ड क्या है, सिंपल. ये हमने सारी चीज़ें लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी. ठीक है. अब आगे देखते हैं. इन फैक्ट एसक्यूएल इज ओनली लैंग्वेज. अब to interact with the database, to interact with the database, we need to develop some language. So this language is SQL. So it interact with the database and done the work for us. For example, if we want to retrieve data, we want to select some data, we want to print the data. Okay, we want to delete data, update data. So all these commands are comes under structure SQL, and it helps to interact with the database. Whenever you interact with a database, the software translate the command, translate your command, whether they are mouse click or form of form entries. ठीक है. And mouse click से कैसे होंगे? uh, Sometimes you see that on your screen there's a little button that says delete. You click on the delete button, then what happened? The data in the particular row is deleted. Okay. So this time we interact with the buttons and we click on the button. Sometime we enter the data. We for example, we sign up on any website and we enter the data in a particular site, and then we click on submit or sign up. Then what happened? The data stored in the database. So in this way we interact with the database in the form of forms. Okay. What Okay. is form, how to make it, we will discuss later on. Okay. Into a SQL statement that the database knows how to interrupt. Okay. The SQL statements that they know how to interrupt. Okay. In a previous class you also that learn about C and C++, है ना? So what happens in C and C++, whenever you run your program, the high level language is converted into machine level language. So the machine understand the what are you saying. Okay. And what you want to that interact, or you want to extract from the hardware, कि उसे बीप करना है, उसे क्या कहते हैं, कुछ डिस्प्ले करवाना है, उसे लाइट्स जलानी है या बंद करनी है, जो भी करना है. ठीक है. एसक्यूएल हैज अ 3 कंपोनेंट्स. कौन कौन से हैं 3? अभी यहाँ 3 कंपोनेंट लिखे हैं, बट मैंने टू कंपोनेंट्स और ऐड किए हैं बीच में. ठीक है. वो मैं बताऊंगा आपको किस टाइम पे कैसे लगेंगे. द फर्स्ट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, that is DML, and data definition language, DDL, and another is DCL, data
control language. Okay, we later discuss about these languages in detail. ठीक है? Now, first, what how we use the SQL on the web. Okay, when you visit to Amazon, when you visit on Amazon, Flipkart, or any uh, that e-commerce websites, then what you do, you click on a particular product, or you type a query, okay, over there, and you, if you want purse, okay, you write the purse in a search box. Then what happens in back, this is the query that execute at the back end. What is this query? That select star means select all the things that are related with the particular query from which table? Product table, where the name like Irish. Now here the user search about the Irish. Okay, for example, he want Irish purse, Irish shoes, or Irish shirts. Okay, whatever he want, he is looking for. He or she may be looking for the the SQL database extracts the data and display on the screen. Okay, did you get the data? No? Is it okay? और हाँ जी, आपको कोई प्रॉब्लम है बेटा कि समझ लग रहा है? हेलो, नहीं सर, पता लग रहा है। एक बार इरिश वाला ये जो बताया वो दोबारा बता दो। देखो इरिश इरिश क्या है कि उससे ना, इरिश फॉर एग्जांपल आपके पास स्क्रीन पे ना आपको कोई वर्ड याद नहीं आ रहा, तो आपने इरिश, आपको पता है कि IRISH था उसमें, ठीक है? तो आपको वो प्रोडक्ट के बारे में याद नहीं आ रहा, तो आपने सर्च बॉक्स में क्या लिख दिया? इरिश लिख दिया। ठीक है, इरिश लिखने से क्या होगा? इरिश लिखने से होगा ये कि जितने भी प्रोडक्ट नेम में कहाँ से हमें क्लियर हुआ कि नेम में ही सर्च कर रहा है, यहाँ पे नेम लिखा है, प्रोडक्ट नेम में हाँ जी। इरिश आता होगा। हो सकता है वो टर्किश हो, ठीक है, या कुछ और हो, ठीक है, या कुछ कोई भी वर्ड हो जो इरिश से बनता होगा, जिसमें बीच में आता होगा। इसमें क्या है, स्टार्टिंग में कोई वर्ड आ सकता है, एंड में भी कोई वर्ड आ सकता है, ठीक है? तो बीच में ठीक है। इरिश बन रहा होगा तो भी ठीक है। तो वो सारी चीजें को, जो सारे प्रोडक्ट उससे रिलेटेड होंगे, उनको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है? नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम ऐसे नहीं लिखते हैं, हम सर्च करते हैं, जैसे बेल्ट लिख दिया आपने सर्च बॉक्स में, बेल्ट लिख दिया या आपने क्लिक कर दिया बेल्ट पे, तो यही कमांड बैकएंड पे चलेगी। तो जितने भी कमांड्स, जितने भी चीज़ें बेल्ट से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें दिखा देगा, वो ये नहीं दिखाएगा। और फिर आपके ऊपर बाद में आप फिल्टर्स लगाते हो। फिल्टर्स क्या है कि आप देखते हो कि जो प्रोडक्ट्स है ना, कई बार प्रोडक्ट की आपका प्राइस जो है वो आपको हायर टू लोअर देखना चाहते हो, तो हायर टू लोअर में क्या होगा, जो हायर प्राइस है वो पहले दिखाई देगा, और जो लोअर है यानी जो लोएस्ट होगा वो नीचे आ जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि चीपर मुझे आगे दिखें, तो आप उसको उल्टा करोगे, तो लोएस्ट टू हाईएस्ट, है ना? ऐसे करते हैं कि नहीं? हम आपने इंटरेक्ट किया है अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे कभी? नहीं, मैंने कभी ऐसे ऑनलाइन तो नहीं कुछ नहीं मंगाया। किया ना? तो आपके फ़ोन में एप्स होंगी, ठीक है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट होंगी एप्स, हम्म। ठीक है? तो आपने इन चीज़ों पे वर्कआउट करके देखना है, तो आपको एग्जैक्ट वर्किंग पता लगेगी। देखो जब ज़रूरी नहीं, मैं हमेशा, पिछली बार भी मैंने अमेजोन और फ्लिपकार्ट ऐसी एग्जांपल यूज़ करी, क्योंकि मैंने इसे प्रैक्टिकल में यूज़ किया है, ठीक है, मुझे पता है ये काम कैसे करते हैं। बट हो सकता है कि ओके। आपके दिमाग में ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी एग्जांपल्स ना आए, तो आपने वो मेरी वाली एग्जांपल्स नहीं देखनी, आप अपनी एग्जांपल देखो कि आप एग्जांपल कैसे बना सकते हो, या आप कोई काम करके देखो, जो वेबसाइट्स हैं उन पे सर्च करके देखो कि कैसे वर्क करती हैं। और एक ना, जैसे अपने माइंड में हम प्रिडिक्ट करते हैं कि ऐसे चलती होगी, ठीक है, तो वैसा प्रिडिक्ट करना शुरू करो ना। फिर लेटर ऑन आपने बनानी भी है, डेवलप भी करनी होगी, या इन पे काम करना होगा, तो हमें ईजी रहेगा उसमें, ठीक है? इस एक्सरसाइज का पर्पज ठीक। सिर्फ यही है कि आपको पता हो कि बैकएंड पे चीज़ें कैसे चलती हैं, ठीक है? नाउ हाँ जी। नेक्स्ट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, वो वाली कमांड दैट मैनिपुलेट द डेटा, ठीक है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कंटेन्स अ सबसेट ऑफ एसक्यूएल कमांड यूज्ड फ्रीक्वेंटली, ठीक है, that those that simply manipulate content of the database in some form. Manipulate means manipulate हो सकता है उसमें insert कर दें,
उसे इंसर्ट करने से, मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है, उसकी जितने डेटा आया हमारे पास वो एक्सीड हो गया एक, ठीक है, उनमें एक वैल्यू डिलीट कर दी, इसके ऑपोजिट डिलीट हो जाएगा, तो डिलीट कर दी उसमें एक वैल्यू, वो भी हमारी डीएमएल के अंदर आ जाएगी। और नेक्स्ट जो हमारा आता है कि उस जो कंटेंट है, जो कंटेंट्स हैं हमारे, ठीक है, उनमें किसी चीज़ को अपडेट कर दिया। फॉर एग्जांपल किसी की कंट्री इंडिया है, उसको कंट्री को हमने कनाडा कर दिया, उसको रशिया कर दिया, तो ये हमने अपडेट कर दिया। तो ये सारी कमांड्स जो हैं दैट कम्स अंडर डीएमएल और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन इंटरव्यूज, ठीक है, कि व्हाट इज डीएमएल and which commands comes under DML. So you must know what is DML and why we call it as DML. क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज होती है, so we call that as DML. Okay. Now next is data definition language. Now data definition language को थोड़ा सा ध्यान से समझना है हमने। ये वो वाली कमांड है that defines the data. How defined? Okay. कौन सी कमांड्स हैं उनको देखकर हमें पता लग जाएगा कि हाउ इट डिफाइंस द डेटा। फर्स्ट इज क्रिएट टेबल, ठीक है, ये कमांड है क्रिएट टेबल। जब भी हमने टेबल क्रिएट करना है तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड है उसका नाम है क्रिएट टेबल कमांड। अब आपने इसको रन किया हुआ है, ठीक है, हमने इस पे भी आना है। कल हम शायद क्रिएट टेबल कमांड रन करेंगे और हम मल्टीपल टेबल्स बनाकर देखेंगे, ठीक है। तो पहले आपने ये एक्सरसाइज की हुई है, बट वो आपने की थी सिर्फ असाइनमेंट को फुलफिल करने के लिए। बट इस टाइम हम करेंगे इसको कि हमें डिटेल में इसको करना है, ठीक है, हमने इसको सीखना है ये कैसे होती है, ठीक है। तो क्रिएट टेबल जो कमांड है वो क्या करेगी, वो करेगी टेबल को क्रिएट करेगी। और इस टाइम पे हम डिफाइन करते हैं कि टेबल के एट्रीब्यूट का नेम क्या होगा। एट्रीब्यूट मीन्स कॉलम नेम क्या होगा, ठीक है, उसकी डेटा टाइप क्या होगी, उसका साइज क्या होगा, ठीक है। और कुछ भी हम डिफाइन करते हैं कि हम इस पे कीज जो लगानी है वो क्रिएशन पे लगाते हैं, और इस पे कीज लगाते हैं, इस पे एक कंस्ट्रेंट्स होते हैं हमारे, वो भी हम लगाते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम क्रिएशन के टाइम पे लगाते हैं, ठीक है। बट हम कल जो वर्क करेंगे उसमें हमने ये नहीं करना है कि मैं आपको क्या कह रहे हैं कि टेबल, नॉर्मली हम सिंपल टेबल क्रिएट करेंगे, बट जब कीज का सेक्शन आएगा तो हम कीज भी लगा कर देखेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल का मतलब ये नहीं है कि हमने कंटेंट को ऑल्टर करना है। कंटेंट इज अ डिफरेंट थिंग और स्ट्रक्चर इज अ डिफरेंट थिंग। जब मुझे स्ट्रक्चर को शो करना है तो मैं डिस्क्राइब टेबल लिखता हूँ, ठीक है। और जब डिस्क्राइब टेबल करते हैं तो वो टेबल का कंटेंट नहीं आता हमें, वो टेबल का डेटा आता है कि टेबल के कॉलम्स कौन से हैं, उनकी डेटा टाइप कौन सी है, उनमें कोई की लगी है कि नहीं की लगी है, ठीक है, कोई कंस्ट्रेंट लगा है कि नहीं लगा। तो ये है ऑल्टर टेबल। फॉर एग्जांपल मैंने आपने जैसे लास्ट टाइम किया था, आपने ऑल्टर टेबल में हम कोई चीज़ एक और कॉलम ऐड करना चाहते हैं। एक टेबल बना हुआ है मेरे पास, मैं एक और कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं ऑल्टर टेबल में वो कॉलम ऐड भी कर सकता हूँ, ठीक है। आपको कोई डिलीट करना है कॉलम, आप डिलीट भी कर सकते हो। आपको किसी कॉलम की डेटा टाइप चेंज करनी है तो आप डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हो। नेम चेंज करना है तो नेम भी चेंज कर सकते हो। हर तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो, बट एक चीज मॉडिफाई नहीं होगी, दैट इज अ टेबल नेम। आप टेबल नेम को रीनेम नहीं करोगे, ठीक है, बाकी सारी चीजों को हम रीनेम कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल डिलीट के जैसा ही है, बट थोड़ा सा इसको समझने वाला है कि ड्रॉप टेबल क्या होगा कि पूरा टेबल का जो स्ट्रक्चर बनाया हमने उसको डिलीट कर देगा। आपके पास एक टेबल है जो बना हुआ है आपके पास, जिसमें आप डेटा डालते हो, अगर उसको टेबल को ही डिलीट कर दोगे तो उसके अंदर का जितना कंटेंट है वो सारा डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूँ कि बेटा एक टेबल है जिसमें 150 एंट्रीज है, ठीक है, तो आप इसे ऐसे करो, इसकी सारी एंट्रीज डिलीट कर दो, ठीक है। तो सारी एंट्रीज अगर आप एक एक करके डिलीट करोगे, ठीक है, या फिर मल्टीपल कमांड्स रन करके डिलीट करोगे तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उससे अच्छा है कि आप पूरा ही टेबल को ड्रॉप कर दो, ठीक है। मैं कहूँ मुझे टेबल ही नहीं चाहिए, अगर सिचुएशन आती है कि मुझे टेबल नहीं चाहिए तो उस केस में हमने क्या करना है, ड्रॉप टेबल कर देना है, ठीक है। एक और कमांड होती है वो ट्रंकेट टेबल होती है, वो डिफरेंट आएगी, वो टेबल को डिलीट करके फिर रिक्रिएट कर देती है, ठीक है। वो जब आएगी तब हम देखते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेजेस हमारे पास ऑलमोस्ट सारा ही कर लेंगे तो शायद ही यूज हो इसमें, बट ये कौन सी कमांड्स है? ग्रांट और रिवोक। ग्रांट होता है परमिशन ग्रांटेड करते हैं हम। हमारे पास जब डेटाबेस होता है तो डेटाबेस पर एक तो एडमिन होता है, ठीक है, एक नॉर्मल यूजर होगा, एक इंटरमीडिएट यूजर होगा जो चीज़ें या तो क्या कहते हैं व्यू कर सकता है और इंसर्ट कर सकता है, और जो यूजर है सिर्फ इंसर्ट कर सकता है, और जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या कर सकता है? डिलीट भी कर सकता है, व्यू भी कर सकता है और इंसर्ट भी कर सकता है। तीनों चीज़ें कर सकता है, ठीक है। अब तीनों में फ़र्क क्या है कि तीनों को हमने अलग अलग परमिशंस ग्रांट की हैं कि एक बंदा ये कर सकता है, एक बंदा ये नहीं कर सकता। तो ये किस केस में कभी आपने देखा है ऐसा कुछ होता हो कहीं पे, रियल लाइफ में कोई एग्जांपल हो ऐसी? मैंने तो नहीं। देखा है कहीं पे आपने कुछ ऐसा होता हो कि कभी नहीं देखा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किया होता ना, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किया होता, ठीक है, जैसे हम स्कूल का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसमें हम फीस एंट्री करते हैं, या एक बच्चों का पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, आपका जो लॉगिन बने हैं, आपके यूनिवर्सिटी पे लॉगिन बने हैं कुछ, हाँ, बने हुए हैं सच। है ना, बने हुए ना? कॉलेज का हाँ, कॉलेज बना के, हुआ हाँ है। कॉलेज में उनमें तीन चीज़ें होंगी, है ना? और कॉलेज की बात कर रहे हैं हम, इंटरनेट बैंकिंग देखें तो इंटरनेट बैंकिंग में भी हमारे पास, हम एक यूज़र बन जाते हैं तो हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जो हाँ जी। हम एंट्रीज कर सकते हैं, तो वो भी डेटाबेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो उन टाइप पे हमें ग्रांट यूज होगा जब हम ग्रांट करेंगे कुछ परमिशंस, ठीक है। नेक्स्ट है रिवोक। रिवोक कमांड जब होती है, यूज होती है जब हमने कोई एग्जिस्टिंग परमिशन दी है, ठीक है, उनको हम रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम उसे रिवोक कर देते हैं, ठीक है। एंड जी। रिवोक कमांड यूज टू रिमूव द एग्जिस्टिंग परमिशन। जो एग्जिस्टिंग परमिशन दी है किसी को, उसको रिमूव कर देनी है, तो हमने क्या कर देना है? रिवोक यूज कर लेंगे। और ये जो दोनों कमांड्स हैं ये डेटाबेस सिक्योरिटी मॉडल से इंटरलिंक्ड है। अच्छा, आपके जो कोर्स है उसका नेम क्या है? डाटा एनालिटिक्स फॉर बिजनेस। डाटा एनालिटिक्स फॉर बिजनेस, ओके, ठीक है। चलो, हाँ उसमें भी शायद कहीं यूज हो सकती है, बट चलो हम अभी सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, आगे देखेंगे सर, अगर कुछ। वो जो इंस्टॉल करना है वो अभी कर दोगे क्लास के बाद? क्लास के बाद ना फिर मेरी क्लासेस हैं, कितना टाइम है? मतलब इसे मतलब 10 मिनट पहले कर देना ताकि वो मेरा इंस्टॉल कर देना। मैंने